Hello students, as we know that I am discussing with the topic life processes, and in this topic I am discussing with the nutrition. Okay, subtopic nutrition. I have already discussed the nutrition in plants now, and I have already discussed the nutrition in unicellular organism. Now I am going to discuss with the nutrition in multicellular organism, that is nutrition in human beings. So nutrition in human beings. हम जो ह्यूमन बींग्स है, वी जनरली वी यूज टू ईट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, है ना, मिनरल्स. सो ये वी जनरली ईट दिस large macromolecules, we eat these large biomolecules. So we have to, our body has to break down into smaller molecule for the absorption. हमारा body जो होता है, it cannot absorb these large biomolecules, so it has to be broken down into the smaller molecules. तो क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं, जैसे कि हमारा जनरली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि whatever the nutrients we eat, the nutrients are carbohydrate, fats, lipids, vitamins, minerals. ठीक है, that nutrients has to be broken down into the smaller molecule, and the broken down of the big biomolecules or large biomolecules breaking down of large biomolecules into smaller biomolecules inside the body, inside our body, is known as the digestion. This process is known as the digestion. So ये जो digestion process है, it consists of a system which is known as the digestive system. ठीक है, digestive system जो होता है, it is made up of two parts mainly, alimentary canal, and alimentary canal से मिलके बना होता है, और digestive glands. ठीक है, alimentary canal and digestive glands. ठीक है, तो इस digestive system में जो alimentary canal है, उसमें इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अदर ऑर्गन्स. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड ओपन्स अप पोस्टीरियरली, और यू कैन से एंड्स अप पोस्टीरियरली एट एनएस पे ये एंड्स अप होता है, खत्म होता है. ठीक है, तो डाइजेस्टिव, और लेट्स सी व्हाट आर द other organs, what are the organs present in alimentary canal. ये this is the structure of the alimentary canal of human being. Structure of alimentary canal. Right? तो जैसे मैंने बताया कि it starts from the mouth. So this is the mouth. The opening of the alimentary canal is known as this is mouth. Mouth, it opens up into a buccal cavity, into a cavity which is known as the buccal cavity or the oral cavity. So this is the oral cavity, mouth, and it's open into a oral cavity or the buccal cavity. अब buccal cavity, इसके तीन parts होते हैं. इसका roof होता है which is known as the roof is constituted by the palate. ठीक है, पैलेट क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी. राइट, सेकेंड पार्ट इज टंग. टंग, इट कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बट इज, एंड द थर्ड पार्ट इज टीथ. ठीक है, teeth, it helps in the mastication of the food. Tongue
helps in the swallowing and the mixing of the food with the saliva. अभी हम एक एक करके सारे organs को देखेंगे, उनका function देखेंगे, ठीक है? There is structure, we will discuss the structure and the function of all the organs. Now this mouth, this buccal cavity opens into buccal cavity, and buccal cavity it leads into the pharynx. Pharynx जो होता है, it is the common passage for both food pipe and windpipe. Pharynx क्या है? It is the common passage for food pipe and windpipe. दोनों के लिए pharynx is a common passage, ठीक है? अब जब food कोई भी human being food खाएगा तो वो common passage pharynx में जब पहुंचता है तो उसके chances होते हैं कि वो हमारे windpipe में भी चला जाए. This is the windpipe, also known as the trachea. Respiration में हम इसको पढ़ेंगे windpipe, and this is windpipe is present anteriorly and the posteriorly the food pipe is present, which is also known as esophagus. Esophagus is also known as food pipe. तो जो भी food human being खाते हैं उसके chances हैं यहाँ windpipe में enter करने के. तो to prevent the food to enter inside the windpipe, there is a structure present on the glottis of the windpipe. Glottis, what is glottis? Glottis is the mouth of the windpipe, ठीक है? ये जो windpipe है, इसका जो ये mouth है, this is the glottis. So glottis is the mouth of windpipe. और glottis को cover करता हुआ एक structure होता है, cartilaginous flap is present above the glottis, and this cartilaginous flap is known as epiglottis, ठीक है? This cartilaginous flap is known as epiglottis. तो जब भी हम food को खाते हैं तो there is a structure cartilaginous flap present which is known as epiglottis, which covers the glottis, which covers the mouth of the windpipe or the trachea, and the mouth of the trachea is known as glottis. So epiglottis is which type of the structure? It is a cartilaginous flap, cartilage का बना होता है, which covers the glottis during swallowing of food. So जब below, now this pharynx it leads into the esophagus. Esophagus is also known as food pipe. It is a thin, long tubular structure. Esophagus कैसा होता है? It is a thin and long tubular structure, and it consists of the muscles in which the contraction and expansion occurs, which helps in the movement of the food, which helps to move away the food in the alimentary canal. Alimentary canal is also known as gut. तो ये जो इसमें जो muscles होते हैं inside the food pipe, the muscles are present in which the rhythmic contraction and expansion takes place, which helps in the movement of the food forwardly from the mouth towards the alimentary canal, towards the stomach, and then small intestine, then large intestine, and towards the anus. So this type of rhythmic contraction and expansion movement is known as peristaltic movement. तो food pipe में या esophagus में not only this peristaltic movement is present not only in the esophagus. Peristaltic movement जो होता है it occurs all over throughout the alimentary canal, ठीक है? तो rhythmic contraction and expansion of the muscles present in alimentary canal
It is also known as peristalsis, peristaltic, peristalsis और peristaltic movement, ठीक है. And it occurs throughout the, occurs all over the alimentary canal. पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, जिसके थ्रू फूड जो है वो मूव होगा फ्रॉम द माउथ टुवर्ड्स द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. अब ये जो ईसोफेगस है, इट विल लीड इनटू, इट विल ओपन अप इनटू अ बैग, इनटू अ जे लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर विच इज बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द स्टमक. तो ये जो है, और ये ईसोफेगस इट इज ओपनिंग इनटू द स्टमक एंड द स्टमक इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस और द फंडिक पार्ट एंड द पाइलोरिक पार्ट, ठीक है. तो टुगेदर दीज 3 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द स्टमक. तो स्टमक एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच इज डिस्टेंसिबल. स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मसल्स प्रेजेंट रहेंगे जिनमें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, और जो इनकी मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा, दे हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड, दे हेल्प इन द चर्निंग ऑफ द फूड एंड एज वेल एज मिक्सिंग ऑफ द secretions of the gastric glands present inside the stomach, ठीक है, for the digestion. अब जो ओपनिंग, जो ईसोफेगस है फूड स्टमक में आता है, इट इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर प्रेजेंट एट द ओपनिंग. दैट स्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर. एंड दिस sphincter, it will guard the movement of the food from esophagus to the stomach. अब stomach से जो है food will lead into the duodenum. Duodenum is the first part of the small intestine. अब यहाँ से कहाँ आ रहा है food? Food is entering inside the duodenum. Duodenum क्या होता है? It is the first part of the small intestine and it is a C-shaped structure. C-shaped structure है ना. यहाँ भी जो है this entry of food from stomach into the duodenum is guarded by a sphincter which is known as the pyloric sphincter. यहाँ पे कौन सा sphincter present होता है? Pyloric sphincter. This is known as pyloric sphincter. ठीक है. अब ये duodenum के बाद the food will enter into the very highly coiled structure that is jejunum. And after jejunum it will enter into another highly coiled structure which is known as the ileum. So these three parts together constitute the small intestine. Small intestine is the part of the alimentary canal where the complete digestion occurs. Digestion completely takes place. After small intestine, the food will enter into the large intestine, and the first part of the large intestine is cecum. Cecum क्या है? Cecum is a blind sac-like structure. ठीक है. Cecum जो है, it is a blind sac-like structure which harbors some microorganisms. ठीक है. सीकम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं विच रिलीजेस द एंटीबायोटिक्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस. इस सीकम से जो होता है, देयर इज अ लॉन्ग थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट विच इज नोन एज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. सो दिस इज दिस थिन लॉन्ग ट्यूबरस स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है.
अब सीकम के बाद the food will enter inside the colon. Colon, it is also the part of the alimentary large intestine, and the colon is divided into 3 parts. ठीक है, colon is divided into 3 parts. This is the ascending colon, or you can write here ascending colon, and then transverse colon, and descending colon. Right? और after this, किसी बुक में you will get to read the sigmoid colon, the fourth part of the colon, that is the sigmoid. लेकिन हमारे NCERT में इसको 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है, ascending colon, transverse colon और descending colon. कोलन के बाद क्या होता है, फूड कहाँ पे आएगा, फूड विल एंटर इनसाइड द रेक्टम, और रेक्टम के बाद the undigested material they will be pass out with the help from the structure known as anus. अब anus के में भी there is a sphincter present which is known as the anal sphincter, which guards the passage of the undigested food, right? So this is the structure of the alimentary canal in the human beings. स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया. फूड जो है, फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है, माउथ होता है. फूड विल एंटर इनटू द माउथ, राइट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. माउथ के बाद फूड कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में जाएगा. बक्कल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलेट, टंग एंड टीथ. बक्कल कैविटी के बाद फूड विल एंटर इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ फॉर फूड पाइप इन द windpipe. After that food will enter into the esophagus. ठीक है, esophagus के बाद कहाँ आएगा फूड, food will enter inside the stomach. मैं यहाँ जो नंबरिंग कर रही हूँ, I am numbering for the main parts of the alimentary canal. ठीक है, स्टमक के बाद फूड कहाँ आ रहा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन किससे किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम. तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इट विल passes through the anus. It will passes outside through the anus. So this is all about the structure of the alimentary canal present in human beings. Next I will discuss about the glands. Okay, so let's see the glands. What are the glands present here? There are mainly digestive glands. First digestive gland which is present here is the salivary gland. ठीक है, salivary gland they are of 3 types. Parotid gland, this is the parotid gland. ठीक है, parotid gland कहाँ present होता है? On the lower corner of the cheek. cheeks के जो lower side होता है ना corner पे, वहां पे parotid gland present होगा. The other 2 salivary glands are submandibular glands and sublingual glands. Submandibular glands are present here. These glands are present. This is the sublingual gland and submandibular gland. Sublingual gland and submandibular gland. So the total 3 types of the glands are present. Salivary glands are 3 types. Parotid glands,
सब maxillary glands and sublingual gland. ठीक है. Parotid glands, they are present in the cheeks. Submaxillary glands present below the lower jaw, and sublingual gland present below the tongue. उसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट हैं, लीवर, then pancreas, then gastric glands, and intestinal glands. ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं हमने डिस्कस कर लिया वहां पे. ठीक है. अब हम डिटेल में देखेंगे. So these are the salivary glands, and this is liver, the largest gland present in the body, and this is pancreas. Right? Gastric glands जो होता है वो present रहेगा stomach में. कहाँ present रहेगा gastric glands? They are present inside the stomach. और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जो ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द 5 स्टेप्स. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स. हमने पहले भी देखा था ह्यूमंस में क्या होता है, किस तरीके के न्यूट्रिशन होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको. और होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा होगा डाइजेशन, थर्ड मैंने बताया था अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, and then last step is ejection. तो जैसा मैंने कि आपको फिगर में दिखाया कि डाइजेशन जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से. ठीक है. डाइजेशन स्टार्ट्स विद, यहां से हम डाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं. पहले क्या होगा? इंजेशन होगा. ठीक है. इंजेशन मतलब टेकिंग इन ऑफ द फूड को खाना इज द प्रोसेस नोन एज द इंजेशन. इंजेशन के बाद डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहले हमने फूड माउथ के थ्रू लिया अंदर, अब माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होगा. माउथ में क्या था मैंने बताया कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दे सिक्रीट सलाइवा. ठीक है. माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होंगे? ये सिक्रीट करेंगे. सलाइवरी ग्लैंड्स दे विल सिक्रीट सलाइवा. ठीक है. सलाइवा सिक्रीट करते हैं. और इस सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, वाटर इन अबंडेंट अमाउंट इज प्रेजेंट, 98% वाटर प्रेजेंट रहता है. तो ये सलाइवा जो है इट विल बी मिक्सड अप विद द फूड. ठीक है. तो ये हम जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो हम बाद में देखेंगे. जस्ट अभी हम क्या देख रहे हैं कि कहाँ से हम डिटेल में देख रहे हैं स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे डाइजेशन स्टार्ट होगा और कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं दे विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो माउथ के बाद द फूड विल लीड इनटू द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में जाएगा. बक्कल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी. ठीक है. बक्कल कैविटी को और क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं. राइट. अब बक्कल कैविटी जैसे मैंने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. बक्कल कैविटी इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज
पैलेट विच कॉन्स्टिट्यूट द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। हमारा टंग, जब हम कुछ बोलते हैं, कई बार हमारा टंग इट टचेस द बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग, इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पीच ऑल्सो। जैसे कि टंग होता है, टंग ऑल्सो हेल्प्स अस इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट पार्ट बक्कल कैविटी का कौन सा हुआ? पैलेट। सेकेंड पार्ट इज टंग एंड द थर्ड पार्ट इज टीथ बिकॉज मैनी टीथ आर प्रेजेंट देयर। अब टंग जो होता है, पहले हम टंग को देखेंगे। तो टंग जो होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। टंग जो है बक्कल कैविटी का फ्लोर फॉर्म करता है एंड इट इज अटैच्ड विद द फ्रेनुलम। टंग जो है इट इज फ्री एंटीरियरली, आप देखोगे मेरा टंग आगे इंटीरियरली इट इज फ्री एंड इट इज अटैच्ड पोस्टीरियरली विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। ठीक है, ये जो है नेक से अटैच्ड होता है पोस्टीरियरली विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या होता है? इट इज अ लिगामेंटस स्ट्रक्चर। तो इट इज फ्री एंटीरियरली, एंटीरियरली जो है टंग जो है फ्री रहेगा, बट पोस्टीरियरली अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम क्या होता है? फ्रेन्यूलम इज अ लिगामेंटस स्ट्रक्चर। फ्रेन्यूलम जो है एक लिगामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो टंग होता है इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, लेकिन आप फिर भी देखोगे कि इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी बोन्स। टंग इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, पता है ना, इसको ध्यान रखें। तो टंग इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल से बना होगा, बट इट इज नॉट अटैच्ड विद एनी bone, but not attached with any bones। अगर हम टंग का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे टंग का होता है। तो ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, हमारे टंग में बहुत सारे पैपिली प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं टंग में। ठीक है, दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिली। और उन पैपिली में क्या होता है? टेस्ट बड्स होते हैं। पैपिली कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बड्स। टंग में क्या होता है? पैपिली प्रेजेंट होते हैं और पैपिली में क्या होगा? टेस्ट बड्स होते हैं। हम देखते हैं हमारा टंग होता है, इट टेस्ट 4 टाइप ऑफ द टेस्ट: बिटर, सॉर, सॉल्टी टेस्ट एंड द स्वीट टेस्ट। तो हमारा जो टंग होता है ना, इसका एक पर्टिकुलर रीजन, हर टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर रीजन ऑक्यूपाइड होता है, स्पेसिफाइड होता है। टंग में किसी भी टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग हैज द टेस्ट बड फॉर द बिटर टेस्ट। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो यहाँ पे जो टेस्ट बड्स होंगे, यहाँ पे टेस्ट बड्स जो है, दिस पोस्टीरियर पार्ट हैज द टेस्ट बड्स फॉर द बिटर टेस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा स्लाइटली एंटीरियर साइड की तरफ आप आओगे तो साइड में टंग के मतलब लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल साइड में जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज टेस्ट बड्स आर फॉर द सॉर टेस्ट, राइट। एंटीरियरली लेटरल रीजन में, एंटीरियरली लेटरल रीजन जो होता है, एंटीरियर लेटरल रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स फॉर द सॉल्टी टेस्ट। यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट के लिए जो है टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड एट द टिप ऑफ द टंग द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट फॉर द स्वीट टेस्ट। यहाँ पे जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं slightly away from the tip, at the tip and the slightly away from the tip, the taste buds which are present, they are for the sweet taste। ठीक है, now what are the function of the taste tongue? तो टंग का फंक्शन क्या होता है? लेट्स सी द फंक्शन ऑफ टंग। तो पहला तो होता है दे आर गस्टेटो रिसेप्टर्स।
गस्टैटो रिसेप्टर में क्या होगा, दे आर गस्टैटो रिसेप्टर्स इन ओरिजिन मीन्स दे आर एबल टू डिटेक्ट द टेस्ट। दूसरा, दे हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, फूड मिक्सिंग with saliva, they help in mixing of food with saliva. They also help in articulation of speech, articulation of speech, ठीक है, and help in swallowing of food, food को swallow करने में भी they help us. So these are the functions of the tongue. They also help as the natural toothbrush, क्योंकि हम बीच बीच में अपने जो टंग से जो है ना अपने जो टीथ होते हैं ना उसको टच करते हैं, we used to clean our teeth. So they also function as the natural toothbrush. Tongue is also function as natural toothbrush. Next part of the buccal cavity is teeth. Teeth, what they do, they break down the large particles of the food into the smaller particles of food. तो teeth का function क्या होता है, उनका काम क्या होता है, break down large particle of food into the smaller particles, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देयर आर द सेट ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में दो तरीके के, पूरी लाइफ साइकिल में उनके पूरे लाइफ टाइम में और लाइफ साइकिल में दो बार दो तरीके के टीथ प्रेजेंट होते, ठीक है। तो इस कंडीशन को जब टू सेट ऑफ और टू टाइप्स ऑफ द लीव्स are present in the life cycle of human beings, this condition is known as diaphyodont dentition और diaphyodont contation, ठीक है। डेंटिशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है। तो diaphyodont dentition मतलब two types of teeth is present in the life cycle, in whole life cycle, ठीक है, of human being। दो तरीके के टीथ कौन से होते हैं, मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी टीथ और डेसिडुअस टीथ, टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, और दे आर ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ। परमानेंट टीथ को एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मिल्क टीथ होता है, दे अराइजेस एट द एज ऑफ 6 to 11 मंथ। 6 से 11 मंथ का जब बच्चा होता है तब मिल्क टीथ आ जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी द डेंटल फॉर्मूला प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। द अरेंजमेंट, जो टीथ का अरेंजमेंट होता है इनसाइड द जॉ, teeth are arranged, teeth are embedded in the socket of jaw bones, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट होता है that arrangement is known as dentition. Now different types of teeth are present actually in the human beings, ठीक है। Mainly there are 4 types of the teeth present in human beings, or due to these different type of the teeth, this dentition, this condition is also known as the heterodont condition, right? Heterodont means different types of the teeth are present. तो और जो teeth का arrangement होता है, it is shown by a formula which is known as the dental formula. The arrangement of teeth is shown by a formula known as the dental formula. उस dental formula में हम क्या बताते हैं, हम दिखाते हैं, हम जो represent करते हैं वो half of the teeth present in half of the upper jaw
in the area of half of the upper jaw and in the area of half of the lower jaw. ठीक है, तो let's see the dental formula in case of human beings. In the milk teeth, जो टेम्पोररी टीथ होते हैं उनमें क्या कंडीशन होती है? 2102 102. This shows the upper half of the half of upper jaw, and this is showing half number of teeth of lower jaw. ठीक है, नीचे वाला जो है लोअर जॉ में हाफ लोअर जॉ में जितने टीथ प्रेजेंट है उनको शो कर रहा है, ऊपर वाला अपर जॉ में जो हाफ अपर जॉ में जो टीथ प्रेजेंट है उनको शो कर रहा है. अगर हम पूरा कंप्लीट जॉ का टीथ देखें तो अपर जॉ में अगर कंप्लीट सेट ऑफ टीथ देखना है तो कितना करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लोअर जॉ में अगर हमें देखना होगा तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना. तो ये तो कंप्लीट सेट ऑफ टीथ देखने अगर हमें पता करना है, लेकिन डेंटल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ अपर हाफ और लोअर हाफ ऑफ द जॉ में जो टीथ प्रेजेंट होंगे उनके नंबर लिखेंगे. तो मैंने बताया था कि हेट्रोडोंट डेंटिशन इज प्रेजेंट. हेट्रोडोंट डेंटिशन मतलब क्या होता है? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट. तो यहां पे जो ये दिखा रहा है, दिस वन इज शोइंग इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड दिस वन इज द मोलर्स. ठीक है, अब लेट्स सी द डेंटल फॉर्मूला इन केस ऑफ द एडल्ट्स और इन परमानेंट टीथ. It is 2 1 2 3 2 1 2 3. Incisor, canine, premolars and molars. ठीक है, तो ये 4 तरीके के टीथ होते हैं. इंसीजर्स का काम क्या होता है? They helps in cutting the food. Canines का काम क्या होगा? They help in tearing the food. ठीक है, then premolars and molars, इनका काम क्या होगा? Grinding, in grinding of food. Premolars and molars का function क्या होता है? They help in the grinding of the food, right? अब मैंने बताया कि जो टीथ होते हैं, टीथ दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द थीकोडोंट कंडीशन. राइट, तो जो टीथ की कंडीशन कैसी होती है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? दैट इज थीकोडोंट कंडीशन. थीकोडोंट कंडीशन मीन्स क्या होता है? टीथ एम्बेडेड in socket of jaw bones. ठीक है, now let's see the structure of a teeth in very short. Let's see the structure of teeth of a tooth in very short. तो टीथ जो है, द टूथ इट इज made up of 3 main parts. It is divided into 3 main parts. First is the crown, second is neck and third is root. ठीक है, तो जो गम के ऊपर जो सॉकेट होता है जॉ बोन की जस्ट अबव पार्ट जो होगा, जो
which is visible, which is white in color, that is known as the crown. This is the crown part of the teeth. ठीक है, crown is present above the gum area. ठीक है, जो सॉकेट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होगा and it appears white in color. This is the gum and the part hidden underneath the gum. Part hidden underneath the gum is known as neck. This is known as neck. And the part embedded in the socket of jawbone, it is known as roots. ठीक है, right? अब जो enamel है, enamel is surrounded by a very hard substances. The crown, basically, it is surrounded by the uppermost part of the crown is surrounded by a very hard chewing surface, which is known as the enamel. So this is the enamel. Enamel क्या होता है? It is hard chewing surface of teeth, right? Enamel, उसके अलावा it forms the hardest substance in our body. Enamel forms the hardest substance of our body. हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है, वो क्या होता है? एनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन क्राउन. एनेमल कहाँ प्रेजेंट होगा? ओनली इन क्राउन. एनेमल खाली जो है क्राउन में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, एंड एनेमल दे आर मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड्स. एनेमल किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड्स. ठीक है, enamel, just below the enamel another hard structures present, which is known as the dentine. Just below the enamel another structure is present which is known as dentine. बच्चों यहाँ पे जो हम टूथ का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे हम टूथ का कर रहे हैं. तो बिलो द इनेमल डेंटाइन इज प्रेजेंट. अब जो ये डेंटाइन होता है, इट इज प्रेजेंट ऑल अलोंग द टूथ. ठीक है, पूरे टूथ में जो है डेंटाइल प्रेजेंट रहेगा. डेंटाइन इट इज ऑल्सो हार्ड सब्सटेंस, हार्ड होगा, बट इट इज नॉट एज मच हार्ड एज द इनेमल इज. ठीक है, एंड इट प्रेजेंट एवरीवेयर. जैसे कि इनेमल इट इज प्रेजेंट ओनली इन द क्राउन, बट डेंटाइन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? नाउ बिलो द socket, the root is present, and this root is embedded in the jawbone, embedded in jawbone. ठीक है, socket of the jawbone. अब इसके अंदर below the dentine a pulp cavity is present. Below the dentine a pulp cavity is present. The pulp cavity, it is leaving. This is the pulp cavity, it is leaving. This is pulp cavity. और pulp cavity क्या होता है? It is leaving होता है. It consists of blood capillaries and nerves. These are some blood capillaries which are present in, and along with the blood capillaries, nerves are present. So these are the blood capillaries, and this blue color structure is, they are nerves. ठीक है, तो pulp cavity में क्या होता है? blood capillaries और nerves present होते हैं. So this is a brief structure of tooth. अब क्या होता है ना, कभी कभी जब हम
कुछ भी खाना खाते हैं तो जो भी हम फूड खाते हैं उसमें शुगर होता है। फूड के साथ मैंने बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, दे मिक्स्ड विद द फूड विद द शुगर, शुगर के साथ मिक्स होकर के, ठीक है, बैक्टीरियल मासेस दे विल मिक्स विद द, जो बैक्टीरियल मासेस है, बैक्टीरियल मासेस मिक्स विद sugars present in food and form a dental plaque over the enamel। जो हमारा enamel होता है ना, क्राउन के ऊपर जो हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस enamel, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर फॉर्म कर देंगे। बैक्टीरिया जो है ये शुगर के साथ, जो भी फूड में शुगर रहेगा उसके साथ मिक्स होकर के एक पतली सी लेयर फॉर्म कर देंगे। अब जब लेयर फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा, अब ये दे विल डाइजेस्ट शुगर को डाइजेस्ट करेंगे तो बैक्टीरिया दे विल रिलीज एसिड, ठीक है। डेंटल प्लाक बनाने के बाद बैक्टीरिया विल रिलीज एसिड, ठीक है। बैक्टीरिया जो है दे विल रिलीज एसिड, और ये एसिड जो होता है दे विल कॉज द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द टीथ, ठीक है। जो टीथ को धीरे धीरे वो सॉफ्ट करता है, इनामल को सॉफ्ट करता है, ठीक है। और इस तरीके से ये टूथ डिके करता है, ठीक है। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग एंड द डिकेइंग ऑफ द टूथ, दिस एसिड इट विल कॉज ग्रेजुअल softening or decaying of tooth, decaying of enamel as well as dentine also, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेंटल प्लाक को, जो डेंटल प्लाक बनता है ना, दैट हैज टू बी रिमूव्ड। जब भी हम खाना खाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाओ, खाने के बाद आप ब्रश जरूर करो, क्योंकि जो बैक्टीरिया होंगे, अगर हम जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो क्लीन हो जाएंगे, वॉश ऑफ हो जाएंगे, और जो भी फूड पार्टिकल अगर कहीं पे भी अगर चिपका हुआ है हमारे माउथ में तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो बैक्टीरिया विल नॉट गेट द food substance, will not get the sugar to produce the acid, they will not get the sugar to form the dental plaque, और इससे क्या होगा, हमारे एनामल को भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो डेंटल प्लाक आपको समझ गया है, व्हाट इज डेंटल प्लाक, एंड दिस डेंटल प्लाक, दिस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग और डिकेइंग ऑफ एनामल, इट इज नोन एज टूथ डिके और डेंटल कैरीज, ठीक है। इसको टूथ डिके बोलते हैं या फिर डेंटल कैरीज बोलते हैं, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया था। द फंक्शन ऑफ टीथ इज द mastication of food, mastication of food, it will break down the large particles of food into the smaller particles which helps in the formation of the bolus. Let's see what is the bolus.